Fine. So good evening and welcome all to this open house session of Stroke Support India, where we try to have regular sessions on various stroke related aspects. So today we have with us Dr. Devendra Singh, physiotherapist, who has good experience in handling various aspects of stroke with stroke related patients over the last several years. And presently he is with Spinofit in Pune, and we are going to talk about shoulder upper limb dysfunction today, which is essentially shoulder related aspects that we'll be talking about. So he will have his small presentation followed by a Q&A session. Then we'll take it further from there. So over to you, Devendra. And I will keep mum for some time now. Okay. Okay. So will in bilingual or I in Hindi? No, I think Hindi will be good. Hindi, English, Okay, kar lo. I think both theek hai because okay. yeah. Okay. So hello everyone. As sir introduced already, my name is Dr. Devendra. I'm currently in Spinofit. So today we are presenting. आज हम जो बात करेंगे mainly with the shoulder dysfunction. Strokes के बाद जो भी shoulder dysfunction होते हैं, shoulders में जो भी issue होते हैं, we'll talk about this. We'll go in a pattern कि हम कैसे बात करेंगे. First we'll discuss कि deformities क्या होती हैं shoulder पे, structural deformities कौन सी होती हैं. Then what are the prevention, हम क्या कर सकते हैं ऐसा घर पे और with the patient जिससे वो चीजें prevent हो पाए. Because everyone is telling about कि क्या करना है, बहुत कम लोग बताते हैं क्या नहीं करना है. तो here come the role कि हमें क्या नहीं करना है, कुछ चीज हमें avoid करनी होती है. Then we'll go for handling techniques की how to handle patient or how to handle for the care family members also. अगर कोई caretaker है for them also कि कैसे handle कर सकते हैं, कुछ चीजें आप घर पे करा सकते हैं. So this is a short introduction of stroke. As you already know, stroke जिसको हम लकवाई बोलते हैं, they are mainly two types, ischemic and hemorrhagic. One is when जो blood ब्रेन पे जाता है, अगर कोई उसकी वेन आर्टरी रप्चर होती है तो ब्लड नहीं जाएगा, देन ब्रेन स्टार्ट डाइंग, ब्रेन मरना शुरू होगा. सेम अगर वो कोई ब्लॉक होता है ऐसा जो ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, देन अगेन वो स्ट्रोक लेगा. So there are some factors. So we directly come into this importance. Why shoulder is that much important in the field of physiotherapy or in the field of stroke? कि shoulder important क्यों है? Because होता क्या है, when जो most hospital rehabilitation centers होते हैं, जब भी stroke होता है, तो just after they are more focused on walking. हम patient को ज्यादा, क्योंकि हमें क्या लगता है first day patient अगर वो bedridden है और उसको stroke हुआ है, उसका मेन इंपॉर्टेंस जो है मेजर दिखता है वो है वॉक नहीं कर पा रहा. जो हम टोटल टाइम या टोटल एनर्जी या पेशेंट को जो मोस्ट हम प्रमोट करते हैं और फोर्सली वॉक करने के लिए प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं वॉक पे ज्यादा होता है कि पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग. तो इन द मेन टाइम होता क्या है दैट शोल्डर या फिर हैंड फंक्शन कंप्लीट नेग्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम वॉकिंग इतने फोकस होते हैं, शोल्डर्स को इतना ध्यान नहीं दे पाते. That is the issue with the hospitals also, or for some side, our side also, some family member sides also. So shoulder is the important factor. तो हमें neglect नहीं करना है. So there is no time limit. Do not wait for the arm to respond. हमें कभी wait नहीं करना है कि arm function आएगा या थोड़ा उससे flicker आएंगे, कोई movement आ रहा है, then हम उसको start करेंगे. हम कोई अगर movement start करते हैं या hand का rehabilitation start करते हैं, हमें तब नहीं स्टार्ट करना है कि जब कोई फंक्शन आएगा. वी डोंट हैव टू फॉर दैट, क्योंकि अगर हैंड फंक्शन नहीं है, एक स्पेसिफिक गेम, और अगर हाथ पे टाइटनेस जो टाइट होता है, हाँ, जिसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वॉकिंग में भी इफेक्ट कर रही होगी. बिकॉज आप वॉकिंग तो सिखा लेंगे, बट जो लेग की, पैर की या हाथ की स्पास्टिसिटी है या टाइटनेस है, जो अकड़न है, उसके वॉक पैटर्न में या वो चलने में भी प्रॉब्लम करेगी. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी और हाथ का फंक्शन पे वर्क करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम गेट पैटर्न पे वॉक करते हैं, वॉकिंग पे जितना फोर्सली और जितना हम फोकस्ड होते हैं. सो आज हम शोल्डर पे बात कर रहे हैं, तो आई विल ओनली
फोकस्ड ऑन शोल्डर, हम ज्यादातर शोल्डर की बात करेंगे, हैंड की बात हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। तो शोल्डर मेनली 3 टाइप्स ऑफ शोल्डर हमें दिखते हैं, 3 टाइप के हमें शोल्डर दिखते हैं आफ्टर स्ट्रोक। फर्स्ट इज सबडक्ट शोल्डर, सेकंड इज पेनफुल शोल्डर, थर्ड एक कंडीशन इसको हम शोल्डर हैंड सिंड्रोम बोलते हैं। तो मेजर डिफरेंस हमें पता होता है, और आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ। जैसे सबडक्ट शोल्डर, इट मीन शोल्डर जो कंधा है वो अपनी जगह से नहीं है, अपनी जगह से निकला हुआ है, जो सबलक्जेशन हम बोलते हैं। आप अगर पेशेंट आता है, और आपने देखा होगा आपके फैमिली मेंबर से जिसको स्ट्रोक होता है, उसका शोल्डर हमेशा थोड़ा सा नीचे दिखेगा आपको, आप एक पैल्पेट करके एक जगह फील कर पाएंगे। मेनली वो पेनफुल नहीं होता, पेशेंट बोलता नहीं कि मुझे पेन है, बट वो एक आपको स्पेस पता चलेगा, हाथ लटका हुआ है, दैट दैट इज सबलक्स शोल्डर। वो मोस्टली 60 to 70% ऑफ द केस में होता है। तो बहुत ज्यादा इससे परेशान भी नहीं होना है, और बहुत ज्यादा आपको ये सोचा कि आएगा या नहीं आएगा, इट विल कम, वो रिकवर होता है। द कंडीशन इज सबडक्ट शोल्डर। सेकंड इज पेनफुल शोल्डर, जिसमें आपको गैप तो नहीं दिखेगा, बट हमेशा डे जीरो से पेशेंट आपको, अगर वो फिजिया में नहीं गया है तो बोल पा रहा है, तो एक वो कंप्लेन करेगा कि मुझे शोल्डर पे पेन होता रहता है। दैट इज मेनली वी आर कॉलिंग इट पेनफुल शोल्डर। और होता है 60 अराउंड से, जो रिकॉर्ड है 60% ऑफ केसेस में होता है। द मेन इंपॉर्टेंट जहाँ फैमिली मेंबर का रोल प्ले आता है, जहाँ हैंडलिंग टेक्निक्स, जहाँ हम कैसे हैंडल करते हैं पेशेंट को और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो पार्ट है, दैट इज शोल्डर। जो शोल्डर हेड सिंड्रोम है, आपको सडन एक विजुअलाइजेशन और एक सडन आप उसको देख सकते हैं कि हाथ में स्वेलिंग आने स्टार्ट होगी। वेरियस फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। तो यू विल सी इन द पेशेंट के हाथ स्वेलिंग आ रही है, विद इन 1 और 2 वीक में स्टार्ट हो जाता है। या कोई ऐसा इंजरी या ऐसी प्लेस पे हाथ गया या ऐसी प्लेस पे रखा हाथ जिसकी वजह से शोल्डर हैंड सिंड्रोम डेवलप। सो हाउ टू प्रिवेंट दिस, हम मेनली फोकस करें शोल्डर हैंड सिंड्रोम पे। तो शोल्डर हैंड सिंड्रोम प्रिवेंट कैसे करते हैं वो भी डिस्कस मैं करता हूँ अभी। और सेम विल डिस्कस कि हाउ इट हैपन, कि ये होता कैसे। द फर्स्ट इज लाइक जस्ट सी द सेकंड फोटो। इसमें क्या है, या तो पेशेंट अपोजिट करके देखिए, फोर्सफुली नीचे हाथ दबा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, या फिर ऐसे व्हील चेयर में सी द लेफ्ट हैंड ऑफ द पेशेंट। वो कहीं अगर व्हील चेयर में पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ पेशेंट, या फिर कहीं भी पेशेंट है, उसका हाथ ऐसा दबा हुआ है, इट मीन वो हाथ में प्रेशर आ रहा है कंटिन्यूस, जो ब्लड फ्लो भी रोकता है और एक हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट करेगा। उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट इमेज। अब आप फर्स्ट इमेज देखिए कि अगर आपका पेशेंट व्हील चेयर पे बैठता है, पेशेंट इज इन व्हील चेयर, आप उसको लेके जाते हैं, या फिर आप अगर उसको हाई सीटिंग में किसी भी बेड पे एक्टिविटीज कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है, उसका शोल्डर कहीं भी दबा नहीं होना चाहिए। तो व्हील चेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हील चेयर के लिए हमने एक व्हील चेयर के आगे एक बोर्ड, जो हम दिखा रहे हैं, बोर्ड व्हील चेयर के आगे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। उसके ऊपर पेशेंट ने अपना हाथ रख रखा है। आप ट्रेवल करा सकते हैं कि ये हाथ नीचे नहीं जाएगा, तो कंडीशन डेवलप होगी नहीं। तो ये ट्रीटमेंट भी है एंड देन प्रिवेंशन भी। सेकंड क्या होता है? फर्स्ट डे से आप बोल सकते हैं कोई एडवाइसेस, फ्री ऑफ एडवाइसेस, या जो आपको कॉमन लोग बोलते हैं जिनको स्पोक के बारे में पता भी नहीं है, बट एडवाइस देते हैं कि आप हाथ हिलाना स्टार्ट करते हैं, आप हाथ को ये कराइए, हाथ से कोई दूसरी एक्टिविटीज कराइए। तो एट द सेम टाइम क्या होता है, हम गलती से ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। ओवर स्ट्रेच में हम हाथ को पुल कर देते हैं, खींच देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर शोल्डर सबलेग्स है, आपको या आप फैमिली मेंबर्स को और आप केयर टेकर्स हैं, अगर उनको पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, हम हाथ कैसा देखा, हमें नॉर्मल देखते हैं कि हाथ ऊपर जाता है नीचे आता है, बट इस कंडीशन में कैसा करना है वो उनको नहीं पता। तो वो हाथ को खींच सकते हैं या ऊपर ले जाएंगे, अब एक हाथ में पुल आ सकता है, और द मोमेंट इट गॉट द पुल, जैसे वो पुल होगा, देन अगेन यू विल सी द स्वेलिंग। तो कंडीशंस हैं कैसे डेवलप होता है शोल्डर हैंड सिंड्रोम, और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, ट्रीटमेंट। फर्स्ट, अगर पेशेंट को शोल्डर हैंड सिंड्रोम हो चुका है, हाथ में स्वेलिंग है, तो आप स्वेलिंग रिड्यूस कर रहे होंगे, बट एट सेम टाइम उसकी स्पास्टिसिटी भी जनरेट हो रही होगी, हाथ में अकड़न भी आ रही होगी। यू कैन यूज स्प्रिंट। क्या होता है, कोई ऐसी, जिसको आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर का, जिसको हम एएफओ बोलते हैं पैर के लिए, बहुत सारे व्हाइट कलर जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, डिफरेंट टाइप बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्प्लिंट्स। तो हम उनको लगा सकते हैं जिससे हाथ की रिस्ट डाउनवर्ड में नहीं जाए। तो स्प्लिंट क्या करेगा, उसको रिस्ट को ऊपर रख के रखेगी, बिकॉज जितना रिस्ट टाइट होगी, जितनी फिंगर्स टाइट होगी, उतना प्रेशर आएगा और स्वेलिंग बढ़ेगी हाथ में। तो फर्स्ट इज स्प्लिंट।
सेकेंड इज इमर्सिंग द हैंड इनटू मिक्सचर ऑफ क्रिस्प वाटर। ये आप घर पे भी कर सकते हैं द मोमेंट आपको लगता है, बिकॉज ये एक आइसिंग टेक्निक फैसिलिटेशन टेक्निक में भी आती है, जिसमें हम पेशेंट के हाथ को आइसिंग करते हैं और जिसके सेंसेशन के लिए, जिससे उसका सेंसेशन पार्ट जो गया है आफ्टर स्ट्रोक वो रिकवर हो, तो ये उसके काम में भी आ रहा है। सेकेंड पार्ट इज इफ पेशेंट हैविंग स्वेलिंग इन द हैंड, अगर हाथ सूज जाए तो क्रस्ट आइस लीजिए, पानी में मिक्स करिए, विद टेम्परेचर आपको डिप करना है फॉर द 3 टाइम्स, वेट फॉर द 3 मिनट, 3 का रूल लगा सकते हैं। तो आपको 3 टाइम्स फॉर द 3 मिनट्स आपको हैंड डिप करना है विद आइस। सेकेंड है एक्टिवेशन मसल पंपिंग। जो थर्ड है, इसमें क्या है, एक्टिवली पेशेंट के हाथ रिस्ट की मूवमेंट कराते हैं। तो हम आपका हाथ का पेशेंट का पकड़ेंगे, हम उसको मूवमेंट सिखाएंगे। मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं, कैसे मूवमेंट कराना है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वेबिनार। बट आप स्मॉल फर्स्ट है फिंगर के इंडिविजुअल ज्वाइंट, अगर आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल ज्वाइंट, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड, थर्ड, विद दिस, देन गो फॉर द रिस्ट, एल्बो। आज एल्बो तक बात करेंगे। अगर हाथ में स्वेलिंग आ रही है तो शोल्डर में होगी, तो आपको मूवमेंट स्टार्ट कराना है। थर्ड इज वेरी ओल्ड टेक्निक बट बहुत यूजफुल टेक्निक है, बट डू नॉट डू इन द होम, बट आप थेरेपिस्ट करते हैं और आप टेपिंग कर सकते हैं विद माइक्रोपोर वाइट टेप आता है उससे। हम क्या करते हैं, फिंगर को बाहर से अंदर की ओर, इट मीन बाहर से फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर टू द बैक साइड। हम एक थ्रेड रोल करने की टेक्निक है, जिसमें हम कंटिन्यूस एक थ्रेड रोल करते हैं, एंड फॉर द स्वेलिंग फॉर द 2 or 3 minutes विल वेट, देन विल रिमूव इट अगेन। तो ये बहुत ओल्ड टेक्निक्स है। आप पाइप माइक्रोपोर से आप ट्राई कर सकते हैं और पेशेंट को करते हैं, बट द थिंग इज आपको बाहर से अंदर की ओर ही करना है। प्रेशर ज्यादा फिंगर के टिप पे, देन वो प्रेशर डिक्रीज होता हुआ नीचे जाएगा। तो दिस इज अबाउट द थर्ड इज मोस्ट कॉमन, स्लिंग। स्लिंग आपने देखा होगा आफ्टर इंजरी और आफ्टर जब स्ट्रोक होता है तो वील रिकमेंड और थेरेपिस्ट रिकमेंड टू वियर स्लिंग, जो आप कंधे पे लटका के रखते हैं कि शोल्डर को रोक के रखना है, मेनली सबडक्शन शोल्डर। जैसे शोल्डर जब आपका बाहर निकलता है, कंधा जब बाहर निकलता है तो हम स्लिंग करते हैं। बट एविडेंस से रिसर्चर्स क्या बोलती हैं, स्लिंग इज नॉट यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द सबडक्शन शोल्डर। जो आपका शोल्डर बाहर निकला है, स्लिंग उसके ट्रीटमेंट में काम में नहीं आता। You'll see in the 2005, 17, 2006, there are various researches where insufficient evidence does not decrease it. Same for the 2007, patient does not wear sling. उनका सेम बेनिफिट होता है, कोई जो स्लिंग लगा रहे हैं जो नहीं लगा रहे हैं, रिकवरी सेम होती है। अगेन देयर इज नो एफिशिएंसी ऑफ शोल्डर स्लिंग। एफिशिएंसी नहीं, क्यों? दैट इज ओनली फॉर द प्रिवेंशन। तो अगर आप पेशेंट आपका ट्रेवल कर रहा है, कहीं आप कोई बहुत ज्यादा रिग्रेस वॉकिंग करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, तो एज अ प्रिवेंशन शोल्डर को फुल ना लगे आप स्लिंग यूज कर सकते हैं, बट आप ट्रीटमेंट के लिए स्लिंग यूज नहीं करेंगे। और फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन स्लिंग यूज नहीं करना है। मोस्ट आप जैसे देखा, आप बोले शोल्डर लगाएंगे बट स्लिंग यूज नहीं करना, बिकॉज यू विल हियर अ टर्म, आपने टर्म सुना होगा, फ्लेक्सर सिनर्जी। और आपने देखा होगा अपने पेशेंट्स में कि विद इन अ टाइम एक टाइटनेस हाथ में जनरेट होती है जो इस पैटर्न में आती है। जो शोल्डर है वो अंदर जाता है, एल्बो फोल्ड होती है, रिस्ट फोल्ड होती है। इट मीन्स शोल्डर की पोजीशन इस वे में जाती है। और जो हम स्लिंग यूज करते हैं, कर रही है, वो सेम पोजीशन में हम शोल्डर, हाँ स्लिंग लगाते हैं, सपोर्ट करते हैं, इन दिस पोजीशन स्लिंग रखता है। तो अल्टीमेट स्लिंग क्या कर रही है? स्लिंग वो चीज जनरेट कर रही है जिसको हम प्रिवेंट करते हैं। हमें फ्लेक्सर सिनर्जी तोड़ना होता है जिससे फंक्शन आ सके। बट अगर लॉन्ग टर्म आप स्लिंग लगाते हैं पेशेंट को, अगेन हम वो चीजें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, जिसपे हम काम कर रहे होते हैं। तो स्लिंग के कोई एविडेंस नहीं है। प्रिवेंशन के लिए आप लगा सकते हैं, बट नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, नॉट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। थर्ड, वेरी मोस्ट कॉमन, किसी को भी नहीं पता है, विल कोई आपके नोन और कोई कोई भी आपको एडवाइस कर सकता है, बिकॉज सबको एक चीज बहुत कॉमन लगती है, द पुली सिस्टम। शोल्डर खराब हुआ है, लकवा हुआ है, मतलब शोल्डर चल नहीं रहा आपका, तो आप पुली करना स्टार्ट कर दो। इन स्ट्रोक, इन एक्यूट कंडीशन, बहुत ज्यादा क्रॉनिक केसेस हम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, बट इन द एक्यूट केस शोल्डर पुली यूज नहीं करना है। आई एम टेलिंग दिस, अगर शोल्डर पुली आप यूज करते हैं, पेशेंट कोई इफेक्टिव टास्क नहीं कर रहा है,
सो हेयर अ टर्म कॉल्ड, और अ टर्म मैं यूज बहुत ज्यादा करता हूँ, पर्पसफुल। तो व्हाट इज पर्पसफुल? हमारे ब्रेन को रिट्रेन होने के लिए या कुछ सीखने के लिए एक पर्पस चाहिए, एक गोल चाहिए। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, सेम एज अ लाइफ ऑल्सो, सेम एज अ ट्रीटमेंट ऑल्सो, अगर किसी भी टेक्निक का, किसी भी टास्क का या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कोई पर्पस नहीं है, तो ब्रेन कभी लर्न नहीं करेगा। तो कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्ट्रोक पेशेंट को नहीं सिखाते हैं, रेयरली कोई एक्टिविटी सिखाते हैं, अदरवाइज कोई भी पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज नहीं सिखाना है जिसका कोई पर्पस नहीं है। पेशेंट बोर होगा, पेशेंट इरिटेट होगा, पेशेंट एक विलिंगली या मन से विल नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी, बिकॉज उसको पता है कि अगर आप एक गिटार प्लेयर को आप गार्डनिंग सिखा रहे हैं, वो नहीं सीखेगा, उसको पसंद ही नहीं होगा सीखना। सेम फॉर पुली, आप एक हाथ बांध देते हैं उसका, दूसरा हाथ दे देते हैं, वो जिस नॉन अफेक्टेड आर्म, जिसने लकवा नहीं हुआ, उससे वो खींचता रहता है आर्म। तो एक फील आता है कि वो काम कर रहा है, बट उसका कोई पर्पज नहीं हो रहा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड, अगेन विल गो बैक, पुलिंग ऑफ द आर्म। पेशेंट को नहीं पता है कितना खींचना है, पेशेंट को तो यही लगेगा मुझे अपना हाथ स्ट्रेट करना है, तो ही विल पुल हिज हैंड टू द हायर एक्सटेंट। और अगर 120 से ज्यादा शोल्डर जाता है, देयर हाई चांसेस ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। देयर इज सब सबलक्सेशन जो ठीक हो सकता है, देयर इज अदर टर्म डिसलोकेशन। अगर वो हुआ तो अगेन पेशेंट का हाथ आर्म ना तो रिकवर करेगा, स्वेलिंग आएगी। I'm audible, I think camera is not working. Sorry sir for the interruption. आर यू आपका नेक्स्ट स्लाइड नहीं I आ think रही साहब? okay, that's the is sir. There is So while we are you're attempting a reciprocal पुलिस क्या काफी कॉमन है कि जैसे दोनों हाथों को खींचते रहो? डू यू सी दैट वेरी ऑफ्टन? yes sir, I'll see very often कि पेशेंट ने एक फर्स्ट थिंग इज स्लिंग, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट को ड्राइव करते हैं या लोग बोलते हैं इन द सम सेंटर्स आल्सो कि आप स्लिंग लगाना यूज करिए। उसके बाद जो रिकवरी प्रोसेस होती है एक लिमिट तक एक्सटेंड हो जाती है। अगर जो रिकवरी हम बहुत फास्ट ला सकते हैं, तो वो रिकवरी बहुत डिले चली जाती है, बिकॉज फास्ट जनरेट हो जाती है। सेकंड इज पुली, जो शोल्डर सबडक्शन होता है आफ्टर इंजरी, पुली यूज करने की वजह से पेशेंट आता है कि वो शोल्डर हैंड सिंड्रोम में कन्वर्ट हो चुका है, स्वेलिंग आ चुकी है, सबडक्शन ऑफ शोल्डर से वो डिसलोकेशन की कंडीशन में जा चुका है। दैट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन की पेशेंट्स को मेनली हॉस्पिटल्स या रिहैब नहीं प्रिस्क्राइब करते, बट जो सराउंडिंग पीपल्स होते हैं वो एक प्रिस्क्राइब करते हैं। देन पेशेंट ने कभी देखा नहीं होता कंडीशन को, वेरी दैट अवेयर नहीं है इतना, लोग यूज कर लेते हैं कि हाँ शोल्डर चल नहीं रहा, और फिजियोथेरेपी में ऐसा कराते भी हैं, तो पेशेंट स्टार्ट कर देते हैं ऐसा करना। कि चलिए मोशन तो हो रहा है थोड़ा सा, शायद इट विल लीड टू मोर रिकवरी और फास्टर रिकवरी, इज दैट द थॉट? लेकिन as you said, it is not purposeful motion, it is not increasing any. That is thing sir, when we are doing in any rehabilitation process, first is purposeful। अगर आपका कोई पर्पस नहीं किसी भी एक्टिविटी में, जस्ट नॉट फॉर द पुली, जस्ट नॉट फॉर द एनी ट्रीटमेंट पार्ट, अगर वो पर्पसफुल नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा पेशेंट पे। पेशेंट अगर हमें पता है कि मेरे काम का नहीं है वो का टास्क, या वो कोई इससे मैं कुछ सीख नहीं सकता, अगर उसको आप पानी पीना सिखा रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग ग्लास और इफ यू नॉट यूजिंग बॉटल जिससे वो रेगुलरली यूज कर सकता है घर पे,
वो ब्रेन उस पैटर्न में नहीं जाएगा, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि अच्छा मैं, आप अगर बिना ग्लास के पानी पीना सिखा रहे हैं, उसको पता ही नहीं होगा ब्रेन को अच्छा मैं करना क्या चाहता हूँ, अल्टीमेट गोल क्या है। यू हैव टू यूज मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स। तो अगर आपको शोल्डर यूज कराना है या आपको वो एक्टिविटी सिखाएं जिससे पेशेंट रीच कर पाए, कोई चीजें अलमीरा से निकाल पाए, तो आपको अलमीरा यूज करनी होगी, आपको उसका वो पार्ट प्लेस यूज करना होगा जहां से वो एक एक्टिविटी कर सकता है, आपको वो चीजें यूज करनी होगी। दैट इज हम्म, just it, I'll start laptop camera. This another camera is there. So this camera is not clear, but I think अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वी कैन सी पार्टली, वी कैन सी यू क्लियरली, ओके, प्रेजेंटेशन ठीक है। okay. So first is fully, and then so second thing is how to handle patient or how to handling. Like we'll see in the photo, हम picture में देख सकते हैं कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो आपको अवॉइड क्या करना है, शोल्डर फुल नहीं होना चाहिए। दिस इज आप 180 के बियॉन्ड नहीं जाए, वो सॉरी 120 के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। इट मीन अगर शोल्डर की जो रेंज है दिस इज 90, जनरली दिस इज 90, दिस इज अराउंड 20 डिग्री, दिस इज 120 अराउंड। इस रेंज से ऊपर आप कोई भी एक्टिविटी घर पे, कोई अगर आपका असिस्टेंट है और समथिंग केयर टेकर है या कोई फैमिली मेंबर है, अगर आपको कुछ एक्टिविटी सिखा रहे हैं शोल्डर की, तो इस शोल्डर इज स्वेलिंग सबलेक्स है, एक्यूट केस है, तो आप 120 से बियॉन्ड नहीं जाए। बिकॉज फर्स्ट आपको ट्रेन करना है विद इन द बेड एक्टिविटी, जिसकी एडियल्स हैं, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज, तो आपको उस पे पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, अदर देन कि आपको एक उस लिमिट तक आपको कंप्लीट हाथ लेके जाना है। बिकॉज देयर इज नॉट अ लिमिट, किसी का हाथ स्ट्रोक से पहले नहीं 120 जा रहा होगा, 180 जाता ही नहीं होगा कभी, तो आपको कंप्लीट, बिकॉज एंड नहीं किसी चीज का, तो आपको 100% करने की इंपॉर्टेंस नहीं है। द इम्पोर्टेंस इज पेशेंट को इंडिपेंडेंट बना, कि पेशेंट कितना जल्दी डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट में आता है। तो शोल्डर की रेंज से बेटर फंक्शन पे काम कर रहे होंगे। थर्ड इज हाउ टू शिफ्ट द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज नर्सिंग स्टाफ गलती कर सकता है, आप गलती कर सकते हैं, और केयर टेकर गलती कर सकते हैं व्हील चेयर उठाने में। दिस इज द वे मोस्टली हम पेशेंट्स को उठाने की कोशिश करते हैं। सेम पैटर्न में क्या है, लेडी उठा रही है, हाथ एक्सिला में जो लोअर पार्ट में है, उसमें क्या होगा, शोल्डर और अपर बॉडी के बीच में एक अलग ही डिफरेंस है। शोल्डर पहले से फ्लेक्सिड है, मतलब लटका हुआ है, आपने पुल किया, शोल्डर के बीच में प्रेशर लगा, वो अगेन शोल्डर और जो स्केपुला बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, वो डिफ्रेंशिएट और अलग कर रहा है। तो अगेन आपको इस वे से नहीं उठाना है, देयर इज अ प्रॉपर वे द पेशेंट फ्रॉम व्हील चेयर टू बेड, बेड टू व्हील चेयर, फ्रॉम द ग्राउंड, और कहीं भी शिफ्टिंग करते हैं, देयर इज प्रॉपर वे। आप अपने थेरेपिस्ट को बोलिए, वो आपको सिखाएगा। आप अगर आईसीयूज में हैं या फिर आप एक्यूट केयर में हैं, तो वहाँ भी एक पेशेंट की टेक्निक्स होती हैं, वो आप उनसे लर्न कर सकते हैं कि मुझे अच्छा मैं घर जाऊँ तो मुझे किस तरीके से पेशेंट को लिटाना है, किस साइड पे लिटाना है, देयर होल प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग, ये प्रेशर सोर कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, मुझे अगर पेशेंट को बेड शीट के साथ उठाना है तो कैसे उठाएंगे, अगर उनको बैठाना है तो कैसे बैठाना है, या उन्हें व्हील चेयर में शिफ्ट करना है, तो पेशेंट को थेरेपिस्ट करा रहे होंगे, आप उससे उनसे लर्न कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। सेकंड, क्लोथिंग, द फोर्थ इमेज वेयर माय कर्सर इज, क्लोजिंग में क्या है, सेम चीज, हम कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन हमें क्या करना है, कपड़े को अंदर खींचना है। अगर हम शर्ट पहना रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड ऐसे कपड़े पहनाना पेशेंट को जो वेरी टाइट फ्रॉम द रिस्ट हो, हाथ से बहुत टाइट हो। ट्राई विद द हाफ स्लीव, अगर वो गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो कोशिश करिए कि जो जैकेट्स आती हैं जो ओपन होती हैं विद द रिस्ट और उनमें स्ट्रैप होते हैं, वो कोशिश करिए। टाइट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप शर्ट को अंदर नहीं खींच रहे होंगे, एट द सेम टाइम बाय मिस्टेक आप भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से कोई अटेंडर्स, वो हाथ को खींच सकते हैं, अगेन सेम पुल लगेगा। तो इन द शोल्डर, treatment part is different for therapist, but most important part is what you are doing the home, because थेरेपी में आप सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं, उसके बाद 23 आवर्स यू आर इन द होम, पेशेंट आपके साथ। तो जितना पेशेंट को लर्न करना है चीजें, जितना थेरेपिस्ट वर्क कर रहा है, एट द सेम टाइम फैमिली मेंबर्स को भी, और जो उनके अटेंडर्स हैं या केयर टेकर हैं, उनको भी चीजें लर्न करनी है। बिकॉज अगर वो गलती इन विद इन होम हुई, अगर शोल्डर फुल घर पे हुआ, तो आपका फाइनेंशियल लॉस है, पेशेंट का मोटिवेशन लॉस है, पेशेंट की रिकवरी डिले होगी। तो आपको मेन जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो आपको केयर टेकर सॉरी केयर करनी पेशेंट को, घर पे करनी है, फुल यूज नहीं करना, शोल्डर उठाना नहीं है। थर्ड इज हाउ टू शिफ्ट, फोर्थ इज
ड्रेसिंग स्टाइल, जब आप कपड़े पहनाते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखें। सो अब कुछ एक्टिविटीज में आते हैं जो आप घर पे भी करा सकते हैं विद सम, दिस इज नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, जस्ट कुछ एक्टिविटीज, और मैं वीडियो प्ले करूंगा और दी आप घर पे मॉडिफाई करके कुछ बेसिक एक्टिविटी आप भी करा सकते हैं घर पे। अदरवाइज फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ योर थेरेपिस्ट, जो आपका थेरेपिस्ट है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे घर पे मैं क्या क्या करा सकता हूँ, तो आप वो चीजें करा सकते हैं। देयर इज अ दिस इज द होल प्रोसीजर हाउ टू डू फॉर द थेरेपिस्ट, मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाता हूँ। दिस इज अ वे, first, second, third. There are three videos. I'm playing the open. There are okay three pictures. So first, patient supine में means सीधा लेटा हुआ और उसके हाथ पीछे हैं. At the same time, therapist is standing or sitting behind. चेयर पे भी बैठ सकते हैं. सेम 90-90 पोजीशन है. शोल्डर एल्बो सिर्फ एक ही लाइन में है. अगेन फोर आर्म इन ऑल्सो इन द 90 पोजीशन. फोल्ड कहाँ से कर रखे, एल्बो मूव नहीं कर रही है, तो आप सपोर्ट फ्रॉम द शोल्डर, आप पेशेंट को इस एक्टिविटी में और इस पोजीशन में होल्ड करा सकते हैं पेशेंट, बिकॉज द लेडी जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं इज हायर मेंटल फंक्शनलिटी, मेंटली भी इतना स्टेबल नहीं है, वो कमांड लेती नहीं है। तो अगर आपको पेशेंट कमांड ले रहा है तो आप पहले इस पोजीशन पे रखिए, देन पेशेंट को बोलिए ट्राई टू शिफ्ट द वेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एल्बो, और शोल्डर आप बोल सकते हैं। तो पेशेंट क्या करेगा, राइट लेफ्ट, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस आई विल से इन द माय एक्सपीरियंस इज वेट बेयरिंग, जिसमें हम जॉइंट से वेट डलाते हैं, बिकॉज देर आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, और प्रोप्रियोसेप्टर एक अलग टर्म है जो एक ब्रेन को सिग्नल देते हैं ओके अभी जॉइंट में हो क्या रहा है, जॉइंट किस पोजीशन में है। तो वो बहुत अच्छी टेक्निक होती है फॉर द रिहेबिलिटेशन और आर्म फंक्शन के लिए। सेकेंड इमेज हमने सेम पेशेंट को साइड डायल में रखा है, जैसे वेट इस इमेज में डला रहे थे, दैट इज फर्स्ट इमेज। सेकंड फिगर में सेम वे से हम इस पे वेट डला रहे हैं, बट इसमें क्या करेंगे, पेशेंट की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होगी। पेशेंट को अगर मूवमेंट कराएंगे उसको बोलेंगे थोड़ा आगे जाएंगे पीछे आएंगे, तो आप ये मूवमेंट करा सकते हैं। थर्ड इज दिस वन, आई कैन प्ले द वीडियो। I think video is playing, sir. Just please confirm me once. Yes, video is playing. No issues. So again, इस इमेज में फर्स्ट थिंग आई विल से हो क्या रहा है इमेज में। फर्स्ट थिंग, जो अफेक्टेड आर्म है दैट इज हर राइट आर्म, उन्होंने राइट को लेफ्ट से, सॉरी लेफ्ट को राइट से पकड़ रखा है, तो लेफ्ट आर्म इज अफेक्टेड, उन्होंने लेफ्ट को राइट से विलिंगली पकड़ रखा। तो एक हैंड रिहेबिलिटेशन में बहुत और शोल्डर रिहेबिलिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पार्टिसिपेशन। पेशेंट का कोई भी एक्टिविटीज आप वो नहीं करा रहे होंगे जिसमें पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बिकॉज अगर वो पेशेंट एक्टिव पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो पेशेंट लर्न नहीं कर रहा, पेशेंट इज नॉट लर्निंग द एक्टिविटी, एक्चुअली यू आर लर्निंग द एक्टिविटी, तो वो करा क्या है। तो कोई भी टास्क होगा उसमें पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। सेम उन्होंने क्या किया, अब मैं ये भी करा सकता था, उनका लेफ्ट आर्म लेके मैं ऊपर नीचे करा सकता था, थेरेपिस्ट नीचे ऊपर करा सकते थे, बट नहीं, हमने क्या किया, सेम आर्म को, अफेक्टेड आर्म को नॉन अफेक्टेड ने पकड़ रखा है, देन वी आर डूइंग अ मूवमेंट। अगेन मूवमेंट में भी क्या है, हम कुछ भी मूवमेंट नहीं करा रहे कि जस्ट यू होल्ड द हैंड डू समथिंग, देयर आर सम पर्पसफुल एक्टिविटीज। तो पर्पस क्या है इसमें, देयर आर टारगेट्स, सी द वीडियो, देयर आर टू हैंड, मैम डिफरेंट पोजीशंस में हाथ को मूव कर रही है, तो मूवमेंट्स ऑल द डायरेक्शन हो रहे हैं, कि पहले ऊपर रखा था, देन राइट, देन लेफ्ट एंड बिहाइंड। तो पेशेंट को एक कॉन्शियसली एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हायर मेंटल फंक्शन डेवलप होते हैं, इससे ब्रेन का या पेशेंट का कॉग्निशन बढ़ता है, टास्क करने के लिए एक मोटिवेशन बढ़ता है, और एक पर्पस होता है टास्क, ओके मैं ये टारगेट या इस गोल पे काम कर रहा हूँ। एक्टिविटी हमेशा पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट सम एक्टिविटीज प्रोन, हम उल्टे में क्या कंडीशन, जब हम हिंदी में बोलते हैं प्रोन लाइन, इनमें पेट के बल जब हम लेटते हैं, कुछ एक्टिविटी पेशेंट को करा सकते हैं विद शोल्डर डिस्टेंशन। फर्स्ट इज दिस, एक वेज बोर्ड है, आप प्लेन सरफेस भी करा सकते हैं, मैंने वेज बोर्ड लगा रखा है, पेशेंट इज क्वाइट एक्टिव नाउ। तो एक वेज बोर्ड है, जिस पोजिशन आप देख रहे हैं उसे पेशेंट ने अगेन वेट बेयरिंग कर रखी ज्वाइंट पे एक्टिवली। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, आप सपोर्ट कर सकते हैं शोल्डर से सेम प्रोन लाइन पोजिशन में। बहुत सारे फंक्शंस भी करा सकते हैं इसमें, लाइक इन दिस वीडियो। Just first see the video, I'll explain.
अगेन पेशेंट का एक पोजीशन है जिसमें पेशेंट लेटा हुआ है, इसमें हम मल्टीपल लिम्स एक्टिव करा रहे हैं पेशेंट का। कुछ एक्टिविटी आप घर पे करा सकते हैं, कोई इसमें फॉल होने के चांस नहीं है बिकॉज पेशेंट इन द फ्लोर, डिसलोकेशन चांस नहीं है बिकॉज पेशेंट अभी एक्टिव है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा पेशेंट एक्टिव नहीं है, डोंट डू दिस फॉर होम। अगर आप प्रिवेंशन के साथ नहीं करा सकते, पेशेंट थेरेपी से लर्न करिए कि मुझे सपोर्ट कहाँ देना है, नेक शोल्डर, देन इसमें वो नी पे भी है, नीलिंग पोजिशन में है, देन ही इज डूइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सेम टाइम पे शोल्डर एक्टिवेशन हो रहा है जिससे शोल्डर की मूवमेंट हो रही है, एल्बो बिकॉज एल्बो ओपन एंड क्लोज हो रही है। तो अगर स्पास्टिसिटी है तो आप पर्टिकुलर एक, अगर एक फंक्शन पे वर्क करेंगे या एक कंपोनेंट ऑफ आर्म पे वर्क करेंगे तो टाइम टेकिंग फॉर द थेरेपिस्ट ऑल्सो। तो हम ऐसा प्लान करिए आप, और पेशेंट को भी बोर नहीं होगा, पेशेंट टायर्ड नहीं होगा, कि मल्टीपल लिम्स और मल्टीपल फंक्शन एक एक्टिविटी पे इन्वॉल्व कर पाए, हमें ऐसा हमेशा कोशिश करनी होती है। तो इसमें एल्बो भी सेम टाइम पे वर्क कर रहा है जिससे स्पास्टिसिटी ऑफ आर्म रिड्यूस होगी, बिकॉज स्पास्टिसिटी मेनली जनरेट विद द फोर आर्म। वो होगी, शोल्डर मूवमेंट हो रहे हैं, पेशेंट वेट बेरिंग में है, नी पे हिप मूवमेंट भी हो रही है, एट द सेम टाइम बैलेंस, पेशेंट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बॉडी का। तो मल्टीपल एक्टिविटीज विद द सेम टाइम हो रही है। देन थर्ड इज साइड लाइन में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, हमने पेशेंट को एक पोजीशन पे रख के छोड़ दिया, जस्ट वेट बेरिंग एक्टिविटीज है, पेशेंट इस पोजीशन में है, शोल्डर पे वेट है, एंड सेम ऑन द एल्बो, दीज आर इन द स्ट्रेट लाइन। पेशेंट को, अगर पेशेंट एक्टिव है, कर पाता है, एक्टिवली कराइए, इफ इज नॉट एबल टू डू, आप विद योर सपोर्ट और विद असिस्टेंस आप सीख के करा सकते हैं। वेज बोर्ड, इफ योर क्वेश्चन इज वेज बोर्ड क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ एलिवेशन से कुछ एंगल्स हम चेंज करते हैं थेरेपेटिक पार्ट में, जिससे प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है इन द जॉइंट्स, एंड कुछ फंक्शन भी एक्टिवेट करा सकते हैं, लाइक दिस फंक्शन, माय पेशेंट इज एक्टिव। पोजिशन में करा रहे हैं, सेम मल्टीपल लिम्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेम टाइम पे बैलेंस हो रहा है एल्बो और शोल्डर का। एंड मेन कंपोनेंट व्हाट आई एम ट्रेनिंग, हम यहाँ क्या ट्रेन कर रहे हैं, इस ट्राइसेप। स्ट्रोक के बाद हाथ फोल्ड करना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू हाथ को ओपन करना। हाथ को ओपन करने का फंक्शन ट्राइसेप्स होता है। तो विद द सेम टाइम जब आप थेरेपी कर रहे हैं या फिर आप जब पेशेंट सिखा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस उन चीजों पे नहीं करना जो चीजें हाथ को क्लोज लाती हैं, बिकॉज क्लोज लाना इज इजी, और एक स्ट्रोक का पैटर्न है कि वो आएगा। तो अगर बट अगर आपने उस कंपोनेंट को या उस मसल को ओवर ट्रेन कर दिया तो इतनी टाइट हो चुकी होगी कि आर्म को जो ओपन करना है वो पॉसिबल ही नहीं होगा पेशेंट को। तो मैंने आपको फोकस करना है कि बैक ऑफ द आर्म, ऐसे फंक्शन जो हाथ को खोलना सिखाते हैं, ऐसे फंक्शन में आपको ज्यादा फोकस रहना है, जो फंक्शन रेपिटेशन उन फंक्शन की ज्यादा करानी है, ट्राइसेप्स पीछे वाला आर्म का मसल है वो ट्रेन हो। सर दिस ऑल्सो सेम एक्टिविटी विद हैंड, जिसमें हमने पहले हाफ एल्बो था, नाउ वी आर इंक्लूडिंग कंप्लीट मूवमेंट ऑन द आर्म। जैसे पेशेंट हैंड पे है, विद द हेल्प ऑफ नॉन अफेक्टेड आर्म वो आगे गिर रहा है, उसके बाद वो उस प्रेशर से पीछे जा रहा है, बैलेंस भी ट्रेन हो रहा है, विद स्ट्रेंथ ट्रेन हो रही है, एंड आर्म फंक्शन भी ट्रेन हो रहे हैं साथ। ओके, देन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हैं कि पेशेंट को हम उठाते कैसे हैं बेड से। तो हम क्या करते हैं ज्यादातर, या फिर थेरेपिस्ट से आप पूछ सकते हैं अपने थेरेपिस्ट से कि कैसे ट्रेन करना है, और दिस इज प्रोसीजर आई एम टीचिंग, कि आप पेशेंट को अगर लेटा है तो उठाते कैसे ना कैसे। फर्स्ट थिंग, विद द डे जीरो आपको कभी भी पेशेंट को उसके अफेक्टेड आर्म, जहां जिसके लकवा हुआ है इसको, उससे उठाना ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पेशेंट को एब की और फुल उठा के बेड पे बैठाया या चेयर पे बैठाया। ऑलवेज इंडल्ज और इन्वॉल्व द पेशेंट इन द एक्टिविटीज। और अगर बिकॉज आप जितना ज्यादा पेशेंट को आप हेल्प करेंगे, द फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी की फीलिंग इज आई एम नॉट वर्स्ट फीलिंग, बट हाँ एक बहुत गंदी फीलिंग होती है पेशेंट्स के लिए आफ्टर स्ट्रोक, कि विद इन अ आवर या विद इन अ डे मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो चुकी है। तो आप जितना उसको डिपेंडेंस दिखाएंगे या फील कराएंगे पेशेंट को, उतना ज्यादा वो इंजरी या वो इफेक्ट्स ज्यादा उसको फील हो रहे होंगे। पेशेंट को इन्वॉल्व करिए, अगर आप उठा रहे हो तो पेशेंट को ट्रीट करिए, उनको एक मोटिवेट करिए और एक पेशेंट को ट्रेन करिए, क्योंकि आपको ऐसे उठना है, उसको पता भी होगा कि मुझे अच्छा मुझे उठना है, मोटिवेशन है, साथ में आप वो ट्रेन भी करा रहे हैं। तो see the video, then I'll explain the component. Just see the video. Affected arm है, मैंने एक हाथ एल्बो पे रखा है, एक हाथ का पाम है वो अपने नी सपोर्ट किया है, देन हाउ आई एम
नॉन अफेक्टेड जिसमें लकवा नहीं हुआ है उसको मैंने पकड़ रखा है, बिकॉज हम थोड़ा फोर्स लगा सकते हैं, वो इफेक्ट भी नहीं होगा, उसमें सब्लिगेशन की चांस भी नहीं है। अगेन फर्स्ट इज शी इज कमिंग ऑन द एल्बो, हम पहले एल्बो पे ला रहे हैं, देन हैंड पे, एल्बो देन हैंड पे, से हम नीचे ले जा रहे हैं तो फर्स्ट एल्बो देन हैंड। ओके, दीज आर द टेक्निक्स, सेम इसमें है। मैंने एक हाथ एल्बो पे सपोर्ट कर रखा है, सी द पिक्चर्स। एक हाथ मेरा शोल्डर पे है, नॉन अफेक्टेड, अफेक्टेड साइड के एल्बो पे हाथ है, बिकॉज यहाँ से मुझे फोर्स लगाना है, और सेकंड ये सब एकदम से लॉक करने के लिए जो आर्म लॉक होगा, लॉकिंग से वो हो, तो पहले एल्बो पे ला रहे हैं, दिस इज एल्बो, वेट अभी एल्बो पे है, देन हैंड पे। तो हम पेशेंट को ट्रेन कर रहे हैं कि आप सुपाइन से, बेड से आप उठ के बैठना कैसे है, दिस इज अ टेक्निक। सेकंड, सिटिंग में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं इन्वॉल्व करके पेशेंट को। विल स्टार्ट विद सम बेसिक टेक्निक, नॉट टेक्निक, जस्ट टास्क। फर्स्ट इज हमने पेशेंट को हाई सिटिंग में इस पोजीशन में बैठाया है, शोल्डर लॉक है, हाथ से लॉक कर रखा है मैंने, एंड मैं पेशेंट को गाइड कर रहा हूँ। आप जस्ट वेट पुट करिए एंड राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं इस वेट को, राइट एंड लेफ्ट इन द वेरी इनिशियल केस। पेशेंट थोड़ा एक्टिव है, आपकी कमांड ले रहा है, जैसे शी इज टेकिंग ए कमांड। तो अगेन मैंने मिसफंक्शन, मैंने एक बॉल रखी है, स्विच बॉल वी कॉलिंग, दोनों हाथ को टाई कर रखा है, जस्ट रोलिंग ऑफ द बॉल। एक टास्क है, पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, सेम टाइम पेशेंट को पता चल रहा है अच्छा मुझे करना क्या है। सेम और दिस ऑल्सो, थर्ड वीडियो, जैसे टैपिंग टेक्निक्स ऑल्सो, पेशेंट को हमेशा फील कराना है वेयर आर्म, बिकॉज एक टर्म आता है स्ट्रोक में, दैट इज यूनिलैटरल नेग्लेक्ट। स्ट्रोक के बाद पेशेंट वो आर्म देखता ही नहीं, या उस हाथ को टच ही नहीं करना। तो आपको वो चीज कराने के लिए पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना होता है कि वो अपने हाथ को टच करे, अपने हाथ को ऑयलिंग करे, अपने हाथ फंक्शन। तो हम उसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पेशेंट के एल्बो लॉक करके मैंने हाथ पे वेट डला रखा है, एंड शी इज टैपिंग हर नॉन अफेक्टेड आर्म से अफेक्ट रहे हैं। तो एक फीलिंग ऑफ सेल्फ फीलिंग भी आ रहा है, सेम टाइम फैसिलिटेट हो रहा है मसल्स का, एट द सेम टाइम वेट बेरिंग, हाथ पे वजन है जो रिहेबिलिटेशन में वर्क करेगा। थर्ड, अगेन एक बेसिक टास्क में है पेशेंट, टास्क पेशेंट हुआ है, आर्म दोनों एक पाइप से लॉक्ड है। सिंपल टेक्निक्स, यू कैन यूज एनी दुपट्टा और एनी क्लॉथ, कुछ आप यूज कर सकते हैं लॉक करके। व्हाट शी इज डूइंग, जस्ट एक सस्पेंशन पे है तो उनको इजी होगा, बस आस्क कर को फ्रंट बैक, एक कमांड है ब्रेन को, फ्रंट बैक ले जा सकते हैं शोल्डर को। और सेम टाइम पे जो आप मशीन देख रहे हैं, दैट इज मसल स्टिमुलेटर मशीन, वो मैंने लगा रखी सेम टाइम पे, तो मसल एक्टिवेशन के लिए मशीन यूज करते हैं। तो दिस इज अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो आप घर पे बहुत इजीली शोल्डर के लिए कर सकते हैं। थर्ड इज सेल्फ असिस्टेड एक्टिविटीज, अगेन आई एम टेलिंग दिस टर्म पर्पसफुल, कि जो एक्टिविटी है उसका एक पर्पस होना चाहिए। मैं पेशेंट को जस्ट एक ट्रेन कर रहा हूँ, आपको पानी कैसे पीना है, आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा थिंग, जस्ट जो उनके पास है, जो पेशेंट को डेली लाइफ में यूज करना है, हम उसी से ट्रेन कराएंगे। तो सेम बोतल दोनों हाथ टच करा रखें, अगर पेशेंट टच नहीं कर रहा तो आप सपोर्ट करने की, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर फंक्शन पहले नहीं था, अभी काफी अच्छा फंक्शन है इनका। सेम दिस इज अ बॉटल, अगर पेशेंट एक्टिवली पकड़ पा रहा है, थोड़ा फंक्शन है, ग्रैबिंग है, बस आ चुकी टाइटनेस, तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बॉटल टेबल पे अगर है तो आप पेशेंट बोलेंगे फर्स्ट नॉन अफेक्टेड, इफ माई लेफ्ट इज दिस आर्म इज अफेक्टेड, सॉरी इसमें लकवा हुआ है तो फ्लैसिड है, इसको पहले रखेगा टेबल पे, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। नॉन अफेक्टेड इसमें लकवा नहीं, उसको इस हाथ से दबाएगा। नाउ शोल्डर इज एक्टिव, जस्ट ट्रेन टू ड्रिंक वाटर। अगर फर्स्ट पानी से मत करिए, अगर पानी नहीं है या फिर आपको एक डर है और चांसेस ऑफ फॉलिंग, एक पानी गिरेगा, तो फर्स्ट समटाइम स्टार्ट विद द एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास से, बट आई विल सजेस्ट गीला होने दीजिए, जो मेरी अकॉर्डिंग मैं जो करता हूँ, थोड़ा पानी डालिए, गीला होने दीजिए, वाटर विल रब, बट उनको फीलिंग आएगा और उनको एक ब्रेन में कमांड जाएगी, ओके मैं अच्छी तरह पानी नहीं पी रहा, इसलिए पानी वो गिर रहा है। वो अगर आप उनको अच्छी तरह ट्रेन करते हैं, पेशेंट विल लर्न कि वो पानी कैसे पीना है। तो वर्क कर रहा है तो दिस एक्टिविटी नहीं है, तो ग्रैब, नॉन अफेक्टेड, सॉरी अफेक्टेड,
non-affected, this activity. Next activity is this one. इसमें arm यूजर है, whole body हो रही है. अफेक्टेड आर्म को नॉन अफेक्टेड को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ फंक्शन जिसमें उनके हैमस्ट्रिंग मतलब लोअर लेग पे, बैक पे और एक सिटिंग भी बैलेंस आ रहा है. सेकेंड टाइम एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं. तो जो फंक्शन हम लेट के पेशेंट को कराते रहते हैं, हाथ खोलो बंद करो खुद से, वो फंक्शन कभी भी नहीं कराना पैसिवली. ऑलवेज इंडल्ज पेशेंट इन एक्टिव एक्टिविटीज. तो पेशेंट खुद से ही कर रहा है, फंक्शन है तो नहीं है तो भी कर. सेकेंड, अगेन दिस थेरेपी, दिस इज अगेन वी कॉल्ड सस्पेंशन थेरेपी. हमने जस्ट आर्म पे एक सम इंस्ट्रूमेंट हमने उसको टाई कर रखा है और पेशेंट सस्पेंशन मिला है, नॉन अफेक्टेड सके एक वो मूवमेंट कराएंगे. तो अगेन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है टास्क. थर्ड, दिस जो हम फर्स्ट एक्टिविटी थी, अगेन अप डाउन, अगेन सिर्फ हमने सपोर्ट दिया है बट हाथ उन्होंने खुद से पकड़ रखा है. वी आर इंडल्जिंग अगेन पेशेंट इन द एक्टिविटी. थर्ड, देयर इज अ टर्म वी कॉल इट प्रोटेक्टिव आर्म एक्सटेंशन ऑफ द आर्म. ये टेक्निक्स हम कराते हैं और एक होल्ड अगेन फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, इट मींस सम ओल्ड टेक्निक जिसमें अगर हमारे पास कोई भी चीज आती है, दैट इज एनीथिंग इज कमिंग टू अस, हमारे एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि हम उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें. इफ वी आर फॉलिंग, हम हाथ रोकते हैं. अगर कोई चीज आ रही है, हाथ रोकते हैं. इट मींस इट्स अ ब्रेन पैटर्न बाय बर्थ और विद इन टाइम पेशेंट ने सीख रखा है. हम यूज को ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं. पेशेंट आर्म इज कंप्लीटली फ्लैसिड, कोई फंक्शन नहीं है, हाथ गिरा हुआ है, आप बाकी एक्टिविटीज तो करा ही रहे हैं बट ये एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, आप कोई चीज लेंगे पेशेंट सामने, वेरी फर्म, वेरी लाइट वेट पिलो ले सकते हैं कोई चीज जो आप पेशेंट को थ्रो करेंगे. तो एक ब्रेन को कमांड, बिकॉज कमांड लर्न हो चुकी है, फास्ट कमांड ब्रेन को लर्न है, कोई चीज आएगी मैं उसको प्रिवेंट करूंगा. तो आप बॉल्स ले सकते हैं जो राइट लेफ्ट आप कर सकते हैं, पिलो ले सकते हैं, आप कोई सॉफ्ट टॉयज ले सकते हैं. जस्ट फॉर द पेशेंट आस्क देम टू ग्रैब, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो नॉन अफेक्टेड आर्म से ही पकड़ेंगे बट विद इन टाइम और विद दिस एक्टिविटी एक कंटिन्यूस कमांड मिल रही होगी पेशेंट को और ब्रेन को, ओके एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एक्टिव हो रहा होगा. तो विद टाइम इट विल हेल्प टू initiate the shoulder function. Then there is some part I'll discuss, that is there are two extension and flexor synergy. It means synergy just a type of pattern, एक पैटर्न है जो लकवे के बाद हैंड में और लेग में आता है. एक्सटेंशन में कैसे होता है कि अगर पेशेंट लाइंग है, आप एक्सटेंड करने के लिए आर्म बोलते हैं, मतलब हाथ को उठाने के लिए बोलते हैं, तो वो हमेशा हाथ के आगे रोटेट होकर पीछे जाएगा. एनर्जी में पैटर्न है, अगर आपको पता करना है कि पेशेंट में क्या जनरेट हो रहा है. सेम अगर पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट को बोलते हैं हाथ उठाने के लिए और ट्राइज टू द पेशेंट ट्राई टू टच हिज हेड. अगर वो हाथ उठाने की कोशिश करता है या सर को टच करने की कोशिश करता है, एक पैटर्न में उसका हाथ जाएगा जो एक फ्लेक्सर सिनर्जी को इंडिकेट करता है. और आपको पता चलता है कि फ्लेक्सर सिनर्जी स्टार्ट हो चुकी है आप घर पे, क्योंकि मुझे वो एक्टिविटीज में लाना है, हाथ में टाइटनेस स्टार्ट हो चुकी है. ओके, थैंक यू. सॉरी सर, आई थिंक इट्स a bit late, but we can just insert the question session from my side. Yeah, thank you very much, Devendra Saab. I think quite interesting and काफी आपने exercises भी बताई. Purposeful exercises करना है. Pattern is purposeful and goal oriented. वो things स्पोर्ट में कंपलसरी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. Purposeful and दूसरा क्या word आपने यूज किया? पर्पसफुल, गोल ओरिएंटेड, जो एक गोल हो किसी चीज को, वो Goal एक्टिविटी अगर oriented. Yes. गोल Yes. ओरिएंटेड. थर्ड इज पेशेंट इज ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेशन. देयर इज अ टर्म कि आप पेशेंट को हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेट कराएंगे, पैसिव एक्टिविटीज डे जीरो से नहीं करानी आप. या Right. पैसिवली आप हाथ खोलना बंद करना, वो सारी एक्टिविटीज नहीं. स्वेलिंग है, सिर्फ एक टेक्निक में शायद मैंने बोला है कि एक्टिव पंप कराना है अगर पेशेंट का हाथ स्वेलिंग में है, अदरवाइज नहीं यूज करना है. पेशेंट को इंडल्ज करिए, हाथ टाई करके पकड़ा करके, बस पेशेंट को एक्टिवली यूज कराना है. ताकि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके the affected person becomes independent. इंडिपेंडेंट, बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन इज इंडिपेंडेंट. हम Right. हमारा Right. गोल नहीं, हम पेशेंट And को he पढ़ाने का also गोल नहीं है. गोल gets इज us जस्ट मेक पेशेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट. and he also gets the satisfaction that he's achieving some. हाँ, इज
अचीविंग समथिंग। तो हम जब खुद से काम करते हैं तो उनको पता होता है ओके मैं एक्सरसाइज में कुछ कर रहा हूँ, मैं एक रिहेबिलिटेशन की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही सीख रहा हूँ। राइट राइट। एक चीज आपने वर्ड यूज किया है स्कैपुला, जस्ट फॉर माय रेफरेंस, व्हाट इज स्कैपुला, कहाँ पर होता है एग्जैक्टली, क्या चीज सर एक जो पीछे जो बोन है, दैट इज वो आई विल यूज अ टर्म, शोल्डर जहाँ से अटैच्ड होता है वो हाँ हाँ स्कैपुला बोन से, जो कंधे की हड्डी होती है दैट इज ह्यूमरस, जो अटैच होती है स्कैपुला पे यूज होती है। तो विथ इन रेंज ही एक्टिवेट शोल्डर होता है, उसके बाद स्कैपुला एक्टिवेट होता है। तो अगर आप उसको जैसे व्हील चेयर में मैंने शायद यूज किया होगा वो टर्म, जब आप पुल करते हैं दोनों हड्डी के बीच में एक ऐसा नहीं है कि शोल्डर जॉइंट कंप्लीटली लॉक्ड होता है हिप जॉइंट और बाकी जॉइंट होता है, जस्ट इट इज हैंगिंग, तो एक हैंग होता है बस उस बोन के पास, फोर्स लगता है, सेपरेशन ऑफ चांसेस वेरी हो जाते हैं सेपरेशन। तो जो शोल्डर सबलेक्स था आपके फोर्स से डिसलोकेशन में चल जाएगा, पूरा ही बाहर आ जाएगा शोल्डर, और वो एक इंजरी के फॉर्म में आएगा। तो जिसको रिटर्न करना इज अनदर रिहेबिलिटेशन गोल, वो अलग ही टास्क हो जाता है पूरा। एंड यूजुअली द फिजियोथेरेपिस्ट आर वेल वर्स्ड, उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता हाँ है अगर कि इन आई चीजों विल की नॉट होल प्रिकॉशंस लेनी कम्युनिटी, आई है। विल नॉट दैट इज प्रॉपर, दैट इज गाइडेंस, और हर थेरेपिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेशेंट जिस स्टेज में आप प्रोसीड करेंगे, आपकी कोई भी एक्टिविटी, आपका कोई भी टास्क, उसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ अगर आप कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और आपकी पेशेंट अपने दोस्त पीछे आता है, मीन्स देयर इज अ लैकिंग, और वो प्रोफेशनल एथिक्स पे भी नहीं आता आप, बिकॉज पेशेंट आया आपके पास वेरी और होप के साथ, आप वो चीजें हमेशा प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, प्रिवेंशन को टेक्निक यूज हमेशा करनी है। बिकॉज स्ट्रोक में शोल्डर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है और वेरी फन सॉफ्ट पार्ट होता है, आपने एक आपके पीछे 6 months पीछे जा सकती है शोल्डर पुल होने से। Right, right. So one has to be careful and approach Yes, sir. these exercises as well as other exercises properly. Properly. So for the therapist also, mainly for the patients and attenders also, And because attender, for us yes, yes, that is because 1 hour many only. times हमारे पास 1 जैसे घंटे हम, होता है। हाँ, बिकॉज उसके जितना भी मैक्सिमम हमें उस समय फिजियोथेरापिस्ट गाइड कर सके, फॉर दैट पीरियड ऑफ 1 hour, The initial phase. ऐसे कि बाकी घंटे तो द फैमिली और द केयर गिवर हैज टू डू टू टेक केयर ऑफ That's दीज। first thing कि आप मिलेंगे अब पेशेंट को, एक्चुअली पेशेंट को फैमिली, लास्ट वेबिनार इज दिस, पेशेंट को डिजीज के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को बताइए, सेम एट द सेम टाइम फैमिलीज को भी लर्न करने की जरूरत है कि स्ट्रोक होता क्या है, कौन सी चीजें कर सकते हैं, देयर इज होल डाटा अवेलेबल, जिससे वो डे 0 पे ही हॉस्पिटल्स में ही नर्सेस को बता सके, पूछ सके कि हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, हमें क्या नहीं करना है। और अगर आपको पता होगा कि मुझे ये वेबिनार आप देख रहे हैं या आपने पढ़ा है कि शोल्डर पुल नहीं करना है, अब बाई चांस कोई नर्स है या कोई भी अटेंडर उस शोल्डर को उठाने की कोशिश करता है, तो आप उसको रोक सकते हो कि इस हाथ से मत उठाइए, आप खिंच सकता है। बिकॉज मैंने केसेस देखे हैं ना, माई पेशेंट ऑनली, उनका शोल्डर नॉर्मल था, जब वो रिहेबिलिटेशन के लिए गए हैं, आफ्टर 1 month उनको एडमिट किया, जस्ट शोल्डर पुल हुआ और डिसलोकेशन में चला गया। फैमिली को पता भी नहीं था, अगर फैमिली को पता होगा तो आप उस चीज को रोक सकते हैं। तो आपकी नॉलेज अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट होती है रिकैब। राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। We open it up to the group. Anyone has any, किसी को भी कुछ पूछना है, any thoughts, anything they want to share, just unmute yourself and please speak up. मैं देखता हूँ if there is, let me see if there is anything on the YouTube chat also. Let me just see that. I have a question. Can I go ahead? Yes, please, Jyoti ji. Please. Yeah. Thank you, Dr. Devendra Singh. Very opening session. My question is, my husband is now post 5 years after stroke. He has right side hemiparesis. But I have two questions today. But when he uses the pulley, we don't use it very regularly, probably once a week, something like that, or twice a week. He says that he's feeling nice. He feels, like he puts a little bit pressure, not much, but a little bit pressure. He takes little more effort to lift his right hand. But he says when he is able to lift the hand completely, he says he feels nice. So
So what is your opinion about it? Like, he now doesn't have any shoulder subluxation. Okay, so if he's using shoulder pulley, there are different components in the shoulder activation or shoulder function also. If patient is active or if patient is able to activate his shoulders to 90 degrees without any help or without anything, then he can go for the pulley with a some extent. But the what only thing I will previously have discussed is participation, active participation. अगर patient कुछ participation अगर उसको force लगा के उठा पा रहे हैं, that is okay. But if he is doing with the non-affected arm, अगर वो that is, I think your husband is right affected. If he is just pulling his arm from the left only, or that is not a power he to lift his right hand with that extent, so that is not effective, I think, because he is just using his left hand to raising his right hand. Better we can go for the other activities, strengthening activities, or with the we are calling it grade 2 activities, in which we are eliminating the gravity. We are not hand against the gravity, but we are doing activities in the x-axis plane. We are calling it x-axis plane. If these activities are only because raising hand, doing activities in the daily life activities is not that frequent activity. Only we are using wardrobes or in kitchen, only we are using our hand to pick up something from the hand. But what regularly we are using is most common is this activity, 90 degrees activity. If that activities are okay with him, he is able to do all these activities, he can go for the that thing for the pulley. But only thing, if he is able to, or if he is generating that force, then only pulley is effective. Otherwise, better to go for that extent beyond 90 or raising hand to the higher extent, that is 180 degree. Better he have to give his time, give his effort to the activities in the 90 degree. These are most common activities in our ADLs. So he can do it, there is no subluxation, but the only thing is he is able to do, or he have to participate willingly. Otherwise, lifting from the right hand or generating force from the left hand is not that effective. Okay, thank you, doctor. My second question is, he is affected on the right and he does all his work on the left. For example, bathing and whatever, he can drink water with the help of both hands. But of late, once a year, he gets too much pain in his left shoulder. Okay. So that I want to know whether it is because of the strain on the left side or strain. That is strain only, overuse of the shoulder. Why I'm focusing on things, if you're not active, that is 5-year cycle. So in the first slide only I mentioned, we often neglect the non-active side. There is, I think, if you're, I think, just go to that slide. There is a line in that line. Oh, okay. Just read that one. The patient become more and more skilled in managing all the activity with his sound hand, and the full potential of affected hand may never be fully developed. That is term I use. That is a term, or that is technique where I'll discuss in a second webinar. That is CIMT, strain induced movement test, in which if your patient is not following your command, or if he is just using his non-affected arm, what we are doing, we are tying the non-affected arm with hand behind, or putting some gloves, or putting hand in a finger, and for some duration, whether the time he's not that irritated or frustrated, will forcefully or will just teach the patient to do or use his affected arm. This is just a condition of overuse of arm. He's using his left hand bending. If he's not using right hand, you're saying he's using only left hand. So doing shoulder is, I think, not a good option also. The strain activity, bilateral, most we'll discuss in second webinar what is bilateral. We are using both the hand for the activities. It will affect. Thank you, Dr. Devendra. So as जैसा आप कह रहे हैं, Devendra साहब, try to use both the limbs. Yes, sir. That is the non-affected limb also does not suffer, undue strain. Because stroke is mostly common in old age. If he is using, or she is using this non-affected arm, most common, that is around 50 years. Most common cases, again he'll develop a frozen shoulder. Then they have to go for other treatment or protocol for the frozen shoulder only.
or shoulder pain or the tiredness of arm, and with time he'll never use, or patient will never use his arm if you're not teaching with the Will be neglect, from yes. the starting. Yes, that is Cooper negligence. Hmm. There's a message on YouTube chat, couple of queries. I'm just going to put on the chat. This one is from Wilson G. He's doing quite vigorous exercises. And he says that he has developed frozen shoulder due to heavy push-ups, as I put in the chat. Okay. Please advise I- exercises. That is, but he is, I know that he is doing vigorous exercises. So So or stroke case or some other. he's a stroke affected. He's a stroke affected person. This is the inquiry he has put on YouTube, actually. There is a okay. So from YouTube, I'm just copying it here. And now he has developed frozen Exercise shoulder. prescribing exercise because frozen shoulder have already have 3 stages of the that complete frozen shoulder is not just a frozen shoulder. There is various stages. So advising exercise is not a very good idea in the just without seeing patient or without telling the patient. So just I'll suggest he'll have to consult a physiotherapist in which stage he is, in which like shoulder is which stage of frozen shoulder this is, what is the cause, maybe it is high push-up, maybe some other cause also there will be calcification of the ball, the calcium level is also there are other factors also. Advising exercise for frozen shoulder is not a good idea in the chat box, but I'll just suggest he try to do some rotation activities. It will help for the And then he shoulder. can, as you say, he can approach his physiotherapist. Physiotherapist. Best idea is just And go then for he the assessment. can advise. Yes, fine. Also, what else do we have on the chat? Okay, Anuragji is saying, how long can it take for a recovery to happen after subluxation? That's also on YouTube chat. unhone dala hai. So after subluxation has occurred, what is the recovery timeline, or how does one handle that? There is not a fixed time for the recovery. There are various age, gender, there are various factors which are responsible for the recovery of the hand or subluxation shoulder. What I saw, I treated a patient within, I think 2 or 3 months, next his shoulder will recover from the subluxation if that in the generalized form or generalized case is there. But there are some other factor on this. I use there is some researchers or some random studies are going, and what they conclude is females are most prone to recover faster in hand function as compared to males. Why they are? Because in the what happened in the female, they are using both part of the brain for the hand function. So it is for the right hand only. If a male get affected with the right hand, the chances of recovery of shoulder is little bit less. If a same part of brain is affected and the same right side is affected in a female, because the female is using right and left both the part of the hand function. These are the most I can say randomized that we are seeing in the research. There is research, proper research there. So if right hand affected means left brain is affected in the female. So at the same time, she is using right brain also. So that brain will guide her for the hand function. She will recover the fast. But same time for males, if right hand is affected, the chances of recovery are less because males are using mainly the left part of the brain for the hand function. Oh, I see. There are other factor also is hand recovery or factors are there in the subluxation. But if there is generalized case also, in 3 or 4 months, you're building with a good protocols, with a good treatment, rehabilitation protocol, it will recover within 3 months of treatment. So generally, as you're saying, a timeline of, let's say, 3 to 4 to 5 months, of course, depending on the individual case and the protocols which are being followed. So that would be some broad idea that no one can give. Okay. Fine. Any other question anyone has, or else we are past 8. If anyone has any other question, else we can close the meeting. Okay. Fine. So thank you very much, Devendra Saab, in this session and all your efforts. I think going forward, हम और elaborate करेंगे. मैं आपसे बात कर लूँगा. Maybe some of these exercises can be developed more and also put forward, more on our social media as well as on our groups.
specifically, I would जैसे आपने mention किया how to lift a patient, how to transfer a patient, properly. हालांकि guidance वहाँ मिलती होगी, I'm sure in different hospitals, but I think there is no harm in reiterating that. So I think for my view, there is no guidance in the hospital. जो मेरा experience, hospitals guide नहीं करते हैं. Actually, मेरी अच्छा. problem nurses को भी इतना problem, जो मेरे पास जितने cases, very few of the cases आई थी कि किसी nurse ने या किसी hospital staff ने suggest किया हो lifting के लिए और एक techniques कैसे आप lift करना है, क्या protocols हैं. और in a very few cases I have seen कि hospitals अभी तो फिर भी frequently लोग suggest करते हैं go for the physiotherapy. डॉक्टर और हॉस्पिटल सजेस्ट भी नहीं करते कि आप इसको गो फॉर द फिजियोथेरेपी, गो फॉर द रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, because they are sending the patient to their home. So learning, there are very videos also in my channel also. In my tutorial have Instagram, I'm also posting how to lift the patient. Very small techniques and tips are there. I'm posting and keep on posting. Right. So then it is useful. जितना भी हम information दे सकें, That is yes, sir. that will be useful. Shruti ji, you have raised your hand. Do you have any question, Shruti? I wanted to share some thoughts regarding what Dr. Devendra Singh said. I completely agree with him that we don't get guidance in the hospital, As I said, as he rightfully said, I want to say, they say, yeah, you have to undergo physiotherapy, that's all. So it's when the physiotherapist comes and trains the caregiver and the patient how to turn in the bed first, then how to get up. That is when we learn how to, make them sit. Otherwise, they are afraid to sit. They feel they will lose their balance and they'll fall down. So it is once the rehabilitation process starts, then only we will come to know. So I best advise, since ours is now a 5-year journey, I really say that the caregivers should involve as much as possible, should not live completely on another caregiver. For example, they might have a person from an agency, or in the hospital, the physiotherapist may come, play his part at that particular session. But at home, those of us who are staying with them, we should learn these basic things, how we can help them turn, get up, sit, we have to involve. I know it is difficult for the caregiver, but initial days, as much as we involve with them, they will get the confidence. And when we are with them, they will want to do it. Otherwise, they will feel that now I am not doing well, my family is away from them. So if we can spend some good time with them, motivating them, definitely, this first process of getting up from the bed, sitting, standing and balancing, and first few steps will be very good. Then they will get, confidence to move forward. So this is what I have observed for myself. I wanted to share with the forum. No, absolutely. It's very important, to take, of course, it's an additional responsibility, but I think it is important to at least learn the basics, on how to handle and how to encourage independence, how to handle activities of daily living and encourage that, which is what we can, and of course, the more the patient recovers, the lesser will be the load on the caregiver also going forward. So it's an iterative thing that one has to do it too. Fine. Thank you very much. True. It's 8:10. Thank you very much, Devendra sir. Thank you. Your all your efforts. Thanks all who could join in. And closing the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Devendra Singh.